Hello student, welcome to AWP lectures. This series is for TYBSCIT semester 5 for the subject of AWP. Okay. In last session we already discussed about basic concept of AWP, this different type of web technologies, server side control, what is server side control, then some features of ASP.NET, then how to create your first web application. This is the practical example. Then introduction of these three web page designing: design view, source view, and split view. Web time, ASPX. How to create your first ASP.NET page. I explained each and every concept, each and every statement in the last session. What is ID? What is this ASP.NET tag? Then we already discussed about what is the code behind class, what is the partial classes, event handling, how to write a code in code behind page model, different type of ASP.NET files, that is web config, global azar, .cs, .aspx file, .ascx. Then we started about the types of server control also. So three types of server control, web server control, and validation server control. We discussed in last session HTML server control, web server control, and validation server control. So what is ASP.NET provide, what is HTML, what is ASP.NET. So we started from this page. Okay. So this is all about the HTML tag. Means head, input type, then checkbox, file, hidden, images, all are the HTML control. You already studied in the semester 2. Next, web server control means what? So web server controls are specially ASP.NET tag, which is understood by the server. Means जो भी web server control है, so this web server control is always tagged with the ASP.NET. Okay, like HTML server control, web server control are also created on a server side and they required run at server attribute. अगर आप HTML टैग में run at server attribute include करते हैं, then it is the web server control, and this control is run or executed at the server side. Mostly all web server control inherit from the common base class, namely web control. Okay, जो भी server controls है, so all these server controls is derived from the web control class. All these server control derived from the web control class, which is defined in which namespace? system.web.ui.web controls. Okay, तो जब भी आप ASP.NET का कोड बिहाइंड द पेज फाइल ओपन करते हो तो आपको स्टार्टिंग में ही ये लाइन इनबिल्ट रहता है, ऑटोमेटिक आ जाता है system.web.ui.web ये नेम स्पेस ऑटोमेटिक क्रिएट हो जाता है. व्हाई इट इज? बिकॉज वी आर गोइंग टू यूज दिस server control. Okay, all server control is inherited from the web control class, and this web control class is written or defined in a web.ui.web control namespace. I hope you understand. So which are the ASP.NET web server control? So add rotator, button control, calendar day,
What is checkbox? What is the list? Checklist. Checkbox list means it create the multi-section checkbox group. What is data grid? We will see one by one practically also. What is data grid? What is data list? Drop down list. All of you know it create the drop down list. Then hyperlink यानी क्या होता है? It creates the hyperlink. Image is what? Display and image. इमेज बटन यानी क्या होता है कि अगर वो बटन पर क्लिक करते हो तो इमेज डिस्प्ले हो जाती है. डिस्प्ले ऑफ क्लिकेबल इमेजेस. देन लेबल कंट्रोल. लेबल यानी क्या है? सो जस्ट लाइक enter your name. This is your label. एंड जब भी आपको आपका नेम टाइप करना है सो दैट इज कॉल्ड एज द टेक्स्ट बॉक्स. हम लोग उसे टेक्स्ट बॉक्स में उसका नेम देते हैं. और जो स्टैंडर्ड फिक्स वैल्यू देना है वी कैन यूज द लेबल कंट्रोल. So it display a static content which is a programmable. Let's you apply a styles to its content. So जो स्टैटिक कंटेंट रहता है, स्टैटिक कंटेंट के लिए कौन सा लेबल यूज करते हैं, कौन से कंट्रोल यूज करते हैं? लेबल कंट्रोल. स्टैटिक है जो चेंज होने वाला नहीं है. आपका नेम चेंज होगा तो हम लोग क्या यूज करेंगे? टेक्स्ट बॉक्स यूज करेंगे. बट एंटर योर नेम ये तो टेक्स्ट चेंज होने वाला नहीं है. स्टूडेंट नेम ये तो टेक्स्ट चेंज होने वाला नहीं है. सो फॉर दैट वी यूज द लेबल. नेक्स्ट लिंक बटन. इट क्रिएट द हाइपर लिंक. इट इज द हाइपर लिंक बटन. उस पर क्लिक करोगे तो हाइपर लिंक जनरेट हो जाएगा. देन लिस्ट बॉक्स इज व्हाट? इट क्रिएट अ सिंगल और मल्टीपल सिलेक्शन ड्रॉप डाउन लिस्ट. सिंगल भी लिस्ट क्रिएट कर सकते हो, अदरवाइज ड्रॉप डाउन लिस्ट होता है ना, ऐसे क्लिक करते हो इस पर ऐसे तो one list is created, that is the list box. Then list item, it create an item in a list. Literals क्या होता है? Display the static content which is a programmable again, तो literal यूज कर सकते हैं. पैनल कंट्रोल क्या होता है? इट प्रोवाइड द कंटेनर फॉर द अदर कंट्रोल. एक कंटेनर रहता है मीन्स अगर आपने एक पैनल लिया है, वो पैनल के जरिए आप वो पैनल में आपके सब कंट्रोल्स इंक्लूड कर सकते हो. So panel is what? It provides a container. So this panel is work like a container for the other control because other console is inside that panel. What is placeholder? It reserves the spaces for the control and added by the code. Radio button क्या होता है? All of you know that. It creates the radio button and radio button list यानी क्या होता है? It creates the list in a bullet format. Okay. Bulleted list means it display the repeated list of items bound to the control, that is bulleted list. Repeaters क्या होता है? Display the repeated list of items bound to the control. Style, set the style of control, different styles of that control. Then table means how to create one table in your server side page or your web page. Okay, so these are the different controls which we are going to use in our web form page. Another type is the ASP.NET validation control. Okay, हम लोगों ने ASP.NET के 3 कंट्रोल्स देखे हैं, right? Server side control, web control, and the third one is the validation control. So what is mean by validation control, which is very very much important. सो वैलिडेट, हम लोग जो भी डेटा इनपुट करेंगे वो डेटा को वैलिडेट करता है, दैट इज कॉल्ड एज द वैलिडेशन कंट्रोल. डेटा को वैलिडेट करना मीन्स फॉर एग्जांपल अगर हम लोग कोई भी फॉर्म फिल करते हैं, ऑनलाइन फॉर्म अगर फिल करते हैं, देन अगर वहाँ कुछ फील्ड्स है जस्ट लाइक स्टूडेंट नेम, ओके, स्टूडेंट रोल नंबर एंड ऑल, और आपने पूरा फॉर्म सबमिट कर दिया, स्टूडेंट फोन नंबर, और वो फील्ड सब मैंडेटरी है, राइट? तो क्या होता है, आपने ये फिल किया, एक फील्ड आपका ब्लैंक रह गया, आपने नेम ही नहीं डाला और पूरा फॉर्म फिल किया एंड देन क्लिक ऑन द क्लिक ऑन द सबमिट बटन. तो जैसे आप सबमिट बटन करोगे तो आपको एक मैसेज आएगा, आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा, आपको एक मैसेज आ जाएगा. मैसेज इज व्हाट? स्टूडेंट नेम शुड नॉट बी ब्लैंक, राइट? तो स्टूडेंट नेम इज मैंडेटरी और फोन नंबर इज मैंडेटरी, योर रोल नंबर इज मैंडेटरी, राइट?
इनवैलिड पासवर्ड, योर पासवर्ड इज नॉट मैचिंग, लाइक दैट। तो ये जो भी मैसेजेस आते हैं, मीन्स व्हाट, हम लोग जो भी डेटा यूजर से इनपुट वर्क करवा के ले रहे हैं वो डेटा को वैलिडेट होता है, राइट? वो डेटा वैलिडेट होता है। सो हु इज गोइंग टू टेक केयर ऑफ दिस वैलिडेशन? दैट इज द वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल। तो उसके लिए कुछ वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स है। तो ये सर्वर कंट्रोल सब डेटा को, हर एक कंट्रोल्स को वैलिडेट करवा के लेते हैं, राइट? सो आफ्टर यू क्रिएट अ वेब फॉर्म, you should make sure that mandatory fields of the form element such as login name, password are not left blank, right? कुछ फॉर्म भी अगर फिल करेंगे, स्टार्टिंग का पेज है, लॉगिन पेज है, लॉगिन पेज में आपको पासवर्ड लिखना मैंडेटरी है, आपका लॉगिन आईडी लिखना ज़रूरी है। अगर हम लोग नहीं लिखते हैं तो क्या होता है, हमें मैसेज मिलता है। तो मैसेज क्यों मिलता है? बिकॉज इट इज़ अ वैलिडेशन कंट्रोल। वो यूज़र से जो भी डेटा एक्सेप्ट कर रहा है वो डेटा वैलिडेट करके लेता है, राइट? सो डेटा इंसर्टेड इज करेक्ट, इज विद इन द स्पेसिफाइड रेंज। गॉट इट? नेक्स्ट वन, validation is a method of observing that the user has entered the correct values in an input field or not. Okay? तो वैलिडेशन क्या होता है? वो ऐसा एक मेथड है जो ऑब्जर्व करता है whether this user has entered the correct values or not. Okay? Another is validation server control is used to validate the data of an input control. जो भी input control है, मीन्स हम लोग नेम लिखते हैं, लॉगिन आईडी, पासवर्ड लिखते हैं, दैट इज ऑल अबाउट द इनपुट कंट्रोल, राइट? तो इनपुट कंट्रोल्स का डेटा वैलिडेट करने का काम वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल करता है। ओके? इफ द डेटा डज नॉट पास टू वैलिडेशन, इट विल डिस्प्ले एन एरर मैसेज टू द यूजर। अगर वो प्रॉपरली वैलिडेट नहीं होता है तो आपको एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा, यूजर को एरर मैसेज डिस्प्ले हो जाएगा। इफ एनी इनवैलिड डेटा इज एंटर्ड द ब्राउजर, itself detect the error on the client side and display the error without requesting to the server. अगर client side पर ही वो data validate नहीं होता है, then client send the message to the user, okay, without requesting to the server. server पर वो data जाता ही नहीं है, आपका validation, आपका client side ही उसका validation हो जाता है. This is the another advantages because it reduces the server load also. ये वैलिडेशन, अगर आपका डेटा वैलिडेट नहीं हो रहा है तो वो क्लाइंट साइड ही स्टॉप हो जाएगा, तो वो सर्वर साइड नहीं जाएगा। अगर सर्वर साइड नहीं जाएगा तो ऑफ कोर्स इट इज बिग एडवांटेजेस कि सर्वर का जो लोड है वो कम हो जाता है। सो दिस वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल्स आर वेरी मच इंपॉर्टेंट सर्वर कंट्रोल। आई होप यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द वैलिडेशन सर्वर कंट्रोल। एंड very popular validation controls are required field validation. required field validation हम लोग क्यों यूज करते हैं? सो मेक एन इनपुट कंट्रोल एज द रिक्वायर्ड फील्ड। जो भी आपका इनपुट कंट्रोल है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको नेम का फील्ड है, स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, मार्क्स एंटर करना है, फोन नंबर, एड्रेस, ये फील्ड आपको रिक्वायर्ड करना है कि स्टूडेंट ने ये डेटा तो करना ही चाहिए, वो ऑप्शनल नहीं है। स्टूडेंट हैज टू एंटर ऑल दीज बेसिक डिटेल्स। तो आप क्या करोगे, कौन सा वैलिडेशन यूज करोगे? रिक्वायर्ड फील्ड वैलिडेशन कंट्रोल्स आप यूज करोगे, राइट? सेकंड है कंपेयर वैलिडेटर। कंपेयर वैलिडेटर हम लोग कब यूज करेंगे? इट कंपेयर्स द वैल्यू ऑफ वन इनपुट कंट्रोल टू द वैल्यू ऑफ अनदर इनपुट कंट्रोल और टू अ फिक्स वैल्यू। ओके? जिससे आपको डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है, राइट? डेट ऑफ बर्थ एंटर करना है तो यू कैन सेट द वैलिडेशन। नहीं तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपका जो भी आप फॉर्म बना रहे हो, जो भी वेब पेज बना रहे हो, उसमें कोई भी डेटा मे बी 100 ईयर्स के बाद का डेटा आ जाए, 100 ईयर बिफोर का डेटा कोई भी फिल कर दे, डेट ऑफ बर्थ रॉन्ग दे दे, तो आप एक उसे कंपैरिजन, एक रेंज लगा सकते हो, कंपेयर कर सकते हो। अनदर इज अ रेंज वैलिडेटर। रेंज वैलिडेटर इज अराउंड सेम, चेक्स that the user enters the value that falls between the two values. आपको दो वैल्यू देना है और आपको चेक करना है कि यूजर वही रेंज में डेटा एंटर कर रहा है या नहीं एंटर कर रहा है। अनदर इज अ रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर। ओके? सो रेगुलर एक्सप्रेशन, इट ensure that the value of an input control matches with the specified pattern. Matches with the specified pattern. फॉर एग्जाम्पल आपका एक फील्ड है ईमेल फील्ड, राइट? अब
अपने ईमेल एक लेबल पर लिखा है ईमेल और उसके सामने एक टेक्स्ट बॉक्स लिया है जहां यूजर अपना ईमेल आईडी पुट करेगा, राइट। सो बट ईमेल आईडी का एक फॉर्मेट होता है, राइट। आपको पता है @gmail.com whatever yahoo.com rediff.com लाइक दैट। सो उसका एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, एक स्पेसिफाइड पैटर्न है। तो यूजर ने अगर आपका ईमेल आईडी लिखा है तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि यूजर कोई भी डेटा एंटर कर रहा है और हमारा जो भी कंट्रोल है वो उसे एक्सेप्ट कर रहा है। मीन्स मे बी इन दैट केस यूजर कुछ 1 2 3 4 5 नंबर्स लिख रहे हैं, नहीं तो फिर कुछ टैक्स लिख रहे हैं और हमारा कंट्रोल उसे एक्सेप्ट कर रहा है। ऐसे नहीं होना चाहिए। इसीलिए हम लोग कौन सा यूज करते हैं, कौन सा वैलिडेशन यूज करते हैं, दैट इज द रेगुलर एक्सप्रेशन वैलिडेटर, स्पेशली फॉर द ईमेल फॉर्मेट। देन कस्टम वैलिडेटर। कस्टम वैलिडेटर में क्या होता है, आप लोग आपका खुद का कस्टमाइज वैलिडेशन कर सकते हो। कुछ आपको कुछ खुद से कुछ वैलिडेट करना है डेटा, नहीं मुझे ये रेंज में चाहिए, मुझे और कुछ ये फॉर्मेटिंग भी चाहिए, वो फॉर्मेटिंग भी चाहिए, ये रेड कलर में ही होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह, वॉट एवर। सो दैट इज कॉल्ड एज द कस्टम वैलिडेटर। ओके, देन वैलिडेशन समरी। अभी वैलिडेशन समरी इज ऑल्सो वन ऑफ द इम्पोर्टेंट पॉइंट, राइट। इट डिस्प्ले a report of all validation error occurred in the web page. Okay. जैसे एक वेब पेज है, एक वेब पेज पर आपको 5 to 6 आपने ये सब वैलिडेशन कंट्रोल लगाया है, राइट। सब होने के बाद अगर स्टूडेंट ने ये 5 to 6 में से अगर 3 4 वैलिडेट नहीं किया, मीन्स प्रॉपर डेटा एंटर नहीं किया है, तो जब भी स्टूडेंट ट्राइंग टू क्लिक ऑन दैट सबमिट बटन, ओके, और इन्होंने 3 फील्ड लेफ्ट ब्लैंक किया है, ओके, ब्लैंक ही छोड़ा है, उसमें डेटा ही एंटर नहीं किया, जो भी डेटा एंटर किया वो वैलिड नहीं है, वो वैलिड नहीं है। तो क्या होगा, जब भी स्टूडेंट सबमिट पर क्लिक करेंगे तो उसे वो वैलिडेशन समरी मिलेगी। वैलिडेशन समरी मीन्स उन्होंने जो भी 3 लेफ्ट किया है और इनवैलिड डेटा एंटर किया है, वो इनवैलिड डेटा का यहाँ मैसेज टाइप हो जाएगा। Maybe student name should mandatory or whatever. You are not entering the proper email ID. Your email ID should not. Your email ID should be in proper format. Whatever. Password, invalid password. तो ये सब रेड लाइंस में आपको एक पूरा समरी मिलता है जब आप सबमिट बटन पर क्लिक करोगे, राइट। तो ये किससे होता है, बिकॉज ऑफ दिस वैलिडेशन समरी। ओके, सो इट डिस्प्ले अ रिपोर्ट ऑफ ऑल वैलिडेशन एरर occurred in a web pages. I hope you understand this validation server control. Next, these are some HTML element. You already know about it. What is anchor tag, what is image, and what is button, input, checkbox. इसके सामने अगर आपने रन एट सर्वर किया तो ये .NET ASP कंट्रोल पर कन्वर्ट हो जाएंगे। हेड, ऑल ऑफ यू नो दैट व्हाट इज हेड, व्हाट इज टाइटल। ओके, व्हाट इज बटन, नॉर्मल बटन दैट यू कैन यूज रिस्पॉन्ड टू क्लिक इवेंट्स। देन reset button, it reset all the other HTML element from default value. So these are the different controls. रेडियो बटन क्या होता है, टेबल क्या, इमेज क्या, जैसे सर्वर कंट्रोल है वैसे ही सब HTML कंट्रोल है वैसे होता है। लेबल इज व्हाट, टेक्स्ट बॉक्स इज व्हाट। ओके, लेबल क्यों यूज कर सकते हैं, टू डिस्प्ले द स्टैटिक टेक्स्ट। टेक्स्ट बॉक्स क्यों यूज करते हैं, जगह अगर आपको यूजर से कोई भी डेटा एक्सेप्ट करना है, ओके, तो आप क्या यूज करोगे, टेक्स्ट बॉक्स यूज करोगे, उसका ASP टेक्स्ट बॉक्स, देन ID टेक्स्ट बॉक्स 1, रन एट सर्वर, ये ASP टैग पर ये इसका फॉर्मेट है। दिस इज द प्रॉपर सिंटैक्स। एज वी ऑलरेडी डिस्कस कि हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं, एक तो हम लोग कोड से वो कोडिंग करके सर्वर जो भी आपका कंट्रोल्स है डिजाइन व्यू में आ जाएगा, और second method is drag and drop method. So mostly we prefer the drag and drop method.
व्हाट इज दिस बटन कंट्रोल, व्हाट इज लिंक बटन, व्हाट इज इमेज बटन, हाइपर लिंक क्या होता है, हर एक का सिंटैक्स दिया हुआ है। वेरी सिंपल, उसका सिंटैक्स तो एक फिक्स रहता है। आपका ASP का जो भी कंट्रोल्स है आपको ASP टैग में लिखना है। मीन्स दिस ASP फॉलोड बाय टाइप ऑफ कंट्रोल, कौन से टाइप का कंट्रोल है, इक्वल्स टू कंट्रोल ID। जैसे देखो हम लोग एक एग्जांपल लेते हैं, लेबल लिखना है हमें, तो हम लोग कैसे लेबल का टैग लिखेंगे, ASP फॉलोड बाय लेबल। कंट्रोल कौन सा है, लेबल है। उसका ID क्या है, ID मीन्स नेम, यूनिक ID। हर एक लेबल, हर एक कंट्रोल का उसका यूनिक ID होता है। ओके, सपोज इट्स ID इज लेबल 1 इक्वल्स टू, ओके, लेबल 1। देन ये SP कंट्रोल है, तो रन एट सर्वर, रन एट सर्वर लेबल and this tag is close here, ASP label. Okay. So this is the format, means आपको ASP tag लिखना है followed by the type of control, आपका जो भी कंट्रोल है उसका नेम आएगा, इक्वल्स टू उसका ID आएगा, आफ्टर दैट रन एट सर्वर एट्रीब्यूट आ जाएगा, और वो जो टैग है वो ASP का जो टैग है वो क्लोज हो जाएगा। दैट इज कॉल्ड एज द फॉर्मेट। ये कोडिंग वर्ड है, जिसे कोड से हम लोग ये टैग सब कंट्रोल सब यूज करेंगे। अगर हमें कोड नहीं करना है तो हम लोग सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप पर भी कर सकते हैं, हमने लास्ट लेक्चर में वो डिस्कस किया था। देन व्हाट इज हाइपरलिंक, हाइपरलिंक अगेन सेम, ASP देखो यहाँ सिंटैक्स दिया हुआ है, ASP हाइपरलिंक ID, देन हाइपरलिंक 1, हाइपरलिंक 1 क्या उसका ID है, रन एट सर्वर, हाइपरलिंक का टैग क्लोज हो जाएगा। देन ड्रॉप डाउन लिस्ट आपको पता है, ऑल नॉर्मल ड्रॉप डाउन लिस्ट कंट्रोल्स लाइक HTML कंट्रोल, इट कैन बी डेटा बाउंड टू द डेटा सोर्सेज। नेक्स्ट कैसे लिखना है आपको, ASP फॉलोड बाय ड्रॉप डाउन लिस्ट, बिकॉज कंट्रोल कौन सा है, ड्रॉप डाउन लिस्ट है। देन इक्वल्स टू ड्रॉप डाउन लिस्ट का जो ID है वो ID क्या है यहाँ, ड्रॉप डाउन लिस्ट 1। देन अगेन रन एट सर्वर, क्लोज हो जाएगा, and ASP.NET drop down list. Then list box, again it is same, ASP followed by list box ID, then equals to list box 1, run at server, ASP.NET list box. Data grid, so all types of the button का कंट्रोल लिखना है। बटन का कंट्रोल कैसे लिखोगे, अगेन सेम, ASP followed by button ID equals to button 1, run at server, text is equals to button, text is equal to button, it's a property actually। बटन पर आपने नाम क्या लिखा है, ओके लिखा है, सबमिट लिखा है, जो भी है वो, एंड ASP.NET बटन का टैग जो है वो क्लोज है। सो दीज आर द टाइप ऑफ डिफरेंट ASP.NET सर्वर कंट्रोल, many more actually, calendar control, placeholder, panel, images, radio button list and all. Okay,